चलो बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So yesterday's homework, the first question was for me. The first question was y is equals to how much beta? Y is equals to your cosecant x. Cosecant x था क्या? secant x था? दोनों भी थे सर. Okay. So y is equals to, अगर मैं secant x ले रहा हूँ, secant x can be written as what beta? 1 by your cos x. Can I write like this? ठीक है. So use the rule right Yes, now sir. here. dy by your dx will be equal to, dy by your dx will be equal to, how much it will be beta? Use u by v rule. Use u by v rule. यहाँ पर u की जगह 1 है और v की जगह cos है. Okay, so we'll draw a line like this, and this will become for me cos of your x whole square. Then I'll keep the first term as it is 1. Okay, then I'll keep the cos x as it is 1, cos x. So I'll keep the cos x as it is, then differentiate the above term. Differentiate is 1 divided by your dx minus, then I'll keep 1 as it is, then differentiate the value of your cos x divided by your dx. Okay. Okay, sir. Okay, chalo. So this will be equal to your cos x into differentiation of 1 will be equal to how much for me? 0 minus 1 into differentiation of cos x will be equal to how much beta? Minus of your sin of your x divided by, this will be your cos square into your x. Anything multiplied with the 0 will be equal to what beta? Anything multiplied 0. 0 will be 0. This is minus 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 of minus, that will become for me plus. So this will become for me sin Plus. into x divided by, this will be equal to your cos square into your x. Can I write like that? Yes. Okay. Now what is the value of your cos theta beta? Can anyone tell me? Cos theta can be written as 1 by cos sin secant theta. yeah 1 by secant theta. 1 by क्या लिख सकता हूँ भाई? सिंप्लीफाई करो इसको, देखो कितना आ रहा. cos theta कैसे लिखता हूँ बेटा? 1 by 1 by secant by cosecant theta by 1 by secant theta whole square. तो क्या हो जाएगा ये देखो जल्दी से. Can I write this one as of your tan x into your secant x बन जाएगा? बना के नहीं बना? Yes, sir. Because cos square x को मैं cos x लिख रहा हूँ बेटा. Sin by cos will be equal to what? Tan, Yes, sir. isn't it? Then 1 by cos will be equal to secant x. Yes, sir. ठीक है? Sir, it will be 1 by secant x. Yeah, I can write here tan x will be equal to how much beta? Sin x by your cos x ना. So this will become how much for me? Tan x into your secant x बराबर ही है. Yes, sir. Isn't it? So y is equals to secant x, then dy by dx will be equal to how much beta? Secant x into your tan x, or tan x into your secant x. So I can even write this one as of your secant x into your tan of your x. Is it clear for everyone? Yes, sir. What is the next question I had given for you? What is the second question? Y is equals to what beta? Cosecant x. Cosecant x can be written as what? 1 by your sin x. So what is the value of dy by dx for this one? What is the value of your dy by dx? Can anyone tell me what is the dy by dx? It is dy by dx is equals to, again it is in the form of u by v. So whatever is in the down, I'll be writing as sin x into your square. Then I'll keep the sin x as it is
then differentiate again your 1 divided by dx. This is minus, then I'll keep the 1 as it is, then again I'll differentiate your sine of your x divided by your dx. So that will be equal to how much better? This will be equal to sine x into differentiation of 1 will be equal to 0 minus differentiation of your sine is what better? Differentiation of your sine is what? Differentiation of sine x कितना होता है? cos x, Cos x. Divided by your sine square into x. Sin x into 0 will be 0. So the answer will be equal to minus of your cos x divided by your sine square into your x. So this can be written as of your minus of your cot x into your cosecant x. Is that clear for everyone? Is that clear Yes, for sir. everyone? Yes. Aya? Is it clear, beta? Yes, sir. Chalo. What is the next question I had given you? Y is equals to how much? X divided by, this one was x square plus 1 to the power of 1 by 2. यही है ना next problem? Yes, sir. ये भी नहीं आया किसी को भी? dy by over dx will be. Again it is in the form of u by v rule बेटा. u by v rule में u की जगह x है and v की जगह क्या है? x square plus 1 to the power of 1 by 2. ठीक है? तो अब इसको देखो क्या करना है, मैं यहाँ पर पूरा ऐसा लाइन मार लूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो दिस वन इज योर 1 by 2. तो इसका पूरा होल स्क्वायर करना है सर. ठीक है, देन आई विल कीप दी एक्स स्क्वायर प्लस 1 to the power of 1 by 2 as it is. Then I will differentiate your dx by your dx. Then minus this is your x as it is upper term. Then I'll differentiate your d into your x square plus 1 to the power of 1 by 2 divided by your dx. Is it clear? Is it clear? So this will be equal to how much beta? X square plus 1 to the power of 1 by 2 into dx by dx cancel हो जाएगा तो this will be equal to 1 minus this will be your x. Differentiation of x square plus 1 to the power of 1 by 2 will be equal to how much beta? ये यहाँ पर आप लोग को चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. चेन रूल आप लोग को मैंने बताया नहीं है तो फिलहाल के लिए मैं देखो यहाँ पर क्या कर ले रहा हूँ. मैं आपको चेन रूल बताने के बाद बता देता हूँ. बताइए तो इसको यहाँ पर ही होल्ड रख लो, शायद आप लोग नहीं कर पा सकते तो मैं आपको एक बार जल्दी से चेन रूल यहाँ पर करवा देता हूँ. देखो बेटा यहाँ पर चेन रूल. दिस वन इज योर चेन रूल. चेन रूल होता क्या है देखो बेटा, इन द सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ. देखो अगर मेरे पास कोई कंडीशन है, मान के चलो लाइक से फॉर एग्जांपल इफ आई एम गिविंग सम वैल्यू राइट नाउ, कोई भी चेन रूल अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. सो अगर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बेसिकली जितना अपने को फिजिक्स में रिक्वायर्ड है उतना ही बोल रहा हूँ. चेन रूल इज नथिंग बट फंक्शन के अंदर फंक्शन. ये हो रहा क्या बेसिकली, फंक्शन में फंक्शन, यानी दो फंक्शन है इसके अंदर. फंक्शन में फंक्शन यानी दो फंक्शन है इसके अंदर राइट नाउ. क्लियर है? Okay, sir. क्लियर? Yes, sir. मान के चलो f ऑफ यूर g ऑफ योर x है. ओके ये पूरा मान के चलो सम u है. ज्यादा टेंशन मत लो वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा. मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ. तो चेन रूल में क्या होता है देखो यहाँ पर बेटा, dy बाई यूर अगर dx है, इसको देखो अगर मैं dy को du से अगर डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई योर du. फिर यहाँ पर मैं योर du डिवाइडेड बाई योर dx करूँ तो कोई दिक्कत आपको? क्योंकि du कट होके फिर अपने को dy by dx ही आएगा ना. No, sir. Isn't it? So this is your chain rule. Yes, sir. Isn't it? Where y is a function and u is also your function. Y is a function and u is also a function. And function के अंदर function. So whenever we are having some function right now, dy by du into your du by your dx लिखना है chain rule का formula.
ओके मान के चलो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, यू विल गेट ए क्लैरिटी। Okay, sir. मान के चलो y is equals to साइन ऑफ योर x है, x के जगह मैंने x ना देके और एक फंक्शन दे दिया आपको, दैट इज नथिंग बट एज ऑफ योर cos x। बस समझ में आ रही है? Yes, sir. y is equals to sin Yes, x sir. sin थीटा होना चाहिए, यानी थीटा के जगह मैंने और एक फंक्शन ले लिया, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर cos x। ये cos x क्या है मेरे पास? u है, यानी अब ये क्या बन जाएगा? y is equals to your sin of your u, बोलो, Yes, sir. isn't it? So u is what? U is the function of your what? Cos of your x, है कि नहीं? ये cos x को निकाल के मैंने u लिख लिया क्योंकि मैंने इसको नाम दे दिया था। तो sin of u is equal to how much for me now? Sin of your u, क्लियर है? और u क्या है? u is the function of your cos x। तो क्या y से u मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ बेटा? देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है? u पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं यहाँ पर dy by over du कर लूं तो क्या आ जाएगा बेटा? दिस इज d, इन द प्लेस ऑफ u आई एम राइटिंग sin u डिवाइडेड बाय योर du। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कितना हो जाएगा बेटा? cos ऑफ योर u। आ गया यहाँ तक सभी को? ये बात क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं देखूं तो u इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? x, यानी अगर x चेंज हो रहा है तो u भी चेंज हो जाएगा, तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ u बाई ओवर dx। तो दिस विल बी इक्वल टू d इंटू योर, इन द प्लेस ऑफ u व्हाट आई एम हैविंग? cos ऑफ योर x डिवाइडेड बाई dx। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होगा बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा? sin x माइनस ऑफ योर sin x, Sin x, sir. ठीक है? तो यहाँ पर अपने पास du dy बाई du आ गया और यहाँ पर अपने पास du बाई और dx आ गया। तो मैं चेन रूल अप्लाई कर लूँ अभी, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? इसका कोई बता सकता है अभी? dy बाई ओवर dx विल बी इक्वल टू dy बाई ओवर du इंटू योर du डिवाइडेड बाई dx। अब इसमें तो वैल्यू डाल दो, du बाई dy बाई du कितना आया मेरे पास? ये हो गया मेरे पास cos ऑफ योर u इंटू योर du बाई dx कितना आया मेरे पास? माइनस ऑफ योर साइन ऑफ योर x। क्लियर है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? माइनस ऑफ योर साइन ऑफ योर x इंटू ये हो गया cos ऑफ योर u। अब ये देखो, स्टार्टिंग में हम लोग ने u को क्या मान के चला था? जो भी हम लोग ने मान के चला था उसको वापस रख लो। u क्या मान के चला था? u इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, यानी u इज नथिंग बट इक्वल टू योर कितना? cos x ही था ना, तो keep back that value again, so it is nothing but cos u, मतलब the answer will be equal to minus of your sin of your x into this one is your cos into, in the place of your u what I'll be keeping beta? In the place of your u I'll be keeping back the value of your cos x। Cos. क्लियर है? थोड़ा टाइम Cos लगेगा, x. थोड़ा मुश्किल होगा बेटा, लेकिन आप लोग को करना है, प्रैक्टिस भी है, मैं बहुत ज्यादा आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगा, उसका आप टेंशन मत लो। तो अब इसका चेन रूल के अंदर फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग बेटा? dy by dx विल बी इक्वल टू dy by du into du by dx। अगर आप पूछ सकते हो सर अब u ही क्यों लिए, कुछ और नहीं लिए? कुछ और भी ले सकते हो। अगर मान के चलो dy by dx है, अगर मैं इसको मान के चलो अमिताभ बच्चन से डिवाइड कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ बेसिकली, यानी अगर मैं du की लिख रहा हूँ बेसिकली, मान के चलो ये हो गया dy डिवाइडेड बाई, ये हो गया मेरे पास अमिताभ बच्चन इनटू ये, फिर ये अमिताभ बच्चन डिवाइडेड बाई योर dx। क्या कोई दिक्कत हो रही है? ये चले जाके फिर अपने को dy बाई dx ही आ रहा है ना, तो dy बाई dx ही हो रहा है। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, यू ही टर्म यूज करना नहीं है, आप z भी लिख सकते हो उसको। सो दिस इज योर dy बाई योर dz इनटू योर, ये हो जाएगा dz बाई योर dx, फिर ये dz कैंसिल हो जाएगा, विल बी गेटिंग अगेन बैक dy बाई योर dx। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यानी इस चेन Yes, sir. हम लोग जो u मान के चल रहे हैं, ये अपनी assumption है बेसिकली, ऐसा पक्का नहीं है कि आप लोग यू ही लेके चलना, आप z लेके चल सकते हो, f लेके चल सकते हो, g लेके चल सकते हो, h लेके चल सकते हो, डिपेंड करता है आप लोग को बेसिकली, ऐसा कुछ भी नहीं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. मैं और प्रॉब्लम कराता हूँ देखो, और इसको आसान में समझने के लिए आप लोग क्या करो, देखो मान के चलो देखो मान के चलो मैं हाँ बेटा कुछ प्रॉब्लम था? हाँ बेटा चलो No, sir.
y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x की जगह मैंने sin x ले लिया। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, ln x होना चाहिए था। ln x होगा तो इजी डिफरेंशिएशन होता था, लेकिन यहाँ पर ln में x की जगह उसने क्या दे दिया फिर से मुझे, और एक फंक्शन डाल दिया उसके अंदर sin x डाल दिया। बात समझ में आ रही? Yes, sir. नहीं आया? मान के चलो अगर आप होमवर्क चल रहा है, मान के चलो क्लास में होमवर्क दे रहे हो, मान के चलो आपके बायोलॉजी टीचर है, फिजिक्स टीचर है, केमिस्ट्री टीचर है, तो फिजिक्स टीचर ने होमवर्क दे दिया, केमिस्ट्री टीचर ने होमवर्क दे दिया और बायोलॉजी टीचर भी होमवर्क दे दिया, यानी एक के ऊपर एक। मान के चलो कोई हफ्ते में 2 टीचर एब्सेंट थे, तो पूरा हफ्ता चाहे मान के चलो फिजिक्स सर ही थे, तो एक ही होमवर्क हो रहा था आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी और हैप्पी। जैसे ही केमिस्ट्री टीचर आ गए, मान के चलो केमिस्ट्री टीचर भी अपना वर्क देना शुरू कर दिए, तो यह माने आपके ऊपर फिजिक्स का भी होमवर्क का लोड है, केमिस्ट्री का भी लोड है, बॉटनी का भी लोड है, तो केमिस्ट्री का भी लोड है, जूलॉजी का लोड है, मैथ्स का भी लोड है, ठीक है ना? यानी लोड के अंदर लोड, इजंट इट? यहाँ पर वही हो रहा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ln ऑफ x होना चाहिए था, x के जगह फिर हम लोग ने क्या डाल दिया, sin x डाल दिया। ऐसे वाले के अंदर प्रॉब्लम हम लोग कैसा करते हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर y इज इक्वल टू sin x को क्या मान के चले, फिर हम लोग क्या मान के चले, u, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. चलो तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू ln ऑफ u, और u बन गया, आसान है ना अभी। Where u is how much beta? Where u is equals to how much? Sin x। मतलब Sin x. u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है, तो y को u से डिफरेंशिएट कर लो पहले, बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा dy by over du is equals to d of, this one is your ln of your u divided by your du. So this will be equal to how much beta? Ln of your x will be equal to how much beta? Differentiation of log x, ln x क्या होता है? Log x. डिफरेंशिएशन ऑफ ln x कितना होता है? 1 by x. 1 by x, यानी x की जगह यहाँ पर क्या है, u, तो यहाँ पर डाल दो मैं 1 by u। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अब यहाँ पर देखो u इज द फंक्शन ऑफ sin x, तो u को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू sin, du by over dx will be equal to d into sin of your x divided by your dx। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या बनेगा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या बनेगा, Cos x. cos x। तो क्या मेरे पास du by dy by du भी आ गया, du by dx भी आ गया, तो व्हाट इज आवर चेन रूल राइट नाउ, dy by over dx is equals to dy by over du into du divided by over dx। So dy by du is how much beta, 1 by u, so I am keeping this one as 1 by u into du by dx is how much for me beta, cos x। So what is the value of your u we have assumed already, what is the value of your u we have assumed, u is equals to sin x, so keep back that value of your sin x, so this will become how much for me beta, 1 by u की वैल्यू कितनी है, sin of your x into your, ये हो गया cos x। तो अब आंसर कितना हो जाएगा बेटा, दिस विल बी इज इक्वल्स टू cos x डिवाइडेड बाय योर sin x। cos थीटा बाय sin थीटा क्या देगा, cot थीटा देगा, सो दिस विल बी cot x। Cot theta. क्लियर, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सुन लो, आराम से आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, 1 से 2 बार वीडियो को रिकॉर्डिंग में देख लो, रिकॉर्डिंग हो रही ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड, और एक एग्जांपल कर लें, चलो y is equals to say for example cos of x, x की जगह मान के चलो मैं दे रहा हूं sin of your x। ये कर लिए क्या हम लोग, फर्स्ट वन क्या किया था हम लोग ने, साइन दिया था, अभी इसका ट्राई करो आप लोग, cos x होना चाहिए था, x की जगह क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, साइन, तो इसको मैं क्या नाम दे दूं, u दे दो, तो ये बन जाएगा कितना बेटा, y is equals to cos of your u। So u is the function of your, y is the function of your u, where
where u is how much beta? U is equals to sine of your x, यानी u is depending on x, Sin x. y is depending on your u. तो y को u से डिफरेंशिएट कर लो, सो dy by your du is equals to d into, तो ये हो गया मेरे पास cos of your u divided by your du. डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या? Minus sin x. माइनस ऑफ योर साइन यू, ठीक है ना? तो यहाँ पर u को डिफरेंशिएट कर लो, du by your dx विल बी इक्वल टू d, u की जगह क्या डाल दोगे? साइन ऑफ योर x डिवाइडेड बाय dx. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विल बी इक्वल टू cos x. टकाटक बोलना बेटा, वरना cos x, Cos x. चलो अब चेन रूल अप्लाई करो. चेन रूल क्या था? dy by your dx is equals to dy by your du into your du divided by dx. तो that will be equal to your how much बेटा? dy by du कितना आया बताओ जल्दी से? माइनस ऑफ योर साइन ऑफ योर u, माइनस ऑफ योर साइन ऑफ योर u into du by dx कितना है बेटा? cos of your x. Now keep back Cos the x. value of your u, that is equals to minus of your sin, u को क्या समझा था आपने? sin x समझा था, into your cos of Sin x. x. ठीक है? So the answer will be equal to how much beta? Answer will be equal to minus of your cos x into this one is sin into your sin of your x. So ये हो गया इसका आंसर dy by dx. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. चेन रूल अप्लाई करने आया अभी, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छी तरह से, आराम से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है नो डाउट, क्योंकि अभी आप लोग 10 से आए हो तो थोड़ा दिक्कत होगी नो डाउट, लेकिन उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, आपको आराम से आ जाएगा. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, चलो और थोड़ा मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ अभी. अभी प्रैक्टिस के लिए देखो हम लोग practice of your chain rule. जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, ये बात याद रख लो आप लोग, ठीक है ना? तो इसका देखो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ. बेसिकली आप लोग को करना कुछ नहीं है. बेसिकली फर्स्ट डिफरेंशिएट द आउटर लेयर, फर्स्ट differentiate the outer layer. पहले outer layer को differentiate करो. First differentiate the outer layer, keeping the inner layer as it is, and then differentiate the inner layer, and multiply the two differentials, Is it clear? देखो करना क्या है? Yes, sir. First differentiate the outer layer, keeping the inner layer as it is, then differentiate the inner layer and multiply the two differentials, Is it clear for everyone? Yes, sir. ये क्या याद रखना है आप लोगों को? फर्स्ट वी नीड टू डिफरेंशिएट द आउटर लेयर, कीपिंग द इनर लेयर एज इट इज, एंड देन डिफरेंशिएट द इनर लेयर एंड मल्टीप्लाई द टू डिफरेंशियल्स. इसको भी मैं आपको अच्छी तरह से एग्जांपल से बताऊंगा. देखो आप लोग समझने की कोशिश करो. एग्जाम्पल देखो, मान के चलो मेरे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ योर 3 टू द पावर ऑफ 9 है. इसका dy by dx निकालना है. Find dy by dx. Find dy by dx is equals to how much? करना कुछ नहीं है. देखो बेटा मैंने अभी जो बताया था आपने को, इसमें पहले क्या डिफरेंशिएट करना है बेटा? आउटर लेयर.
आउटर लेयर को करना है। सो पहले क्या करना है अपने को, आउटर लेयर को डिफरेंशिएट करना है, कीपिंग इन माइंड द इनर लेयर एज इट इज। ठीक है, इसमें आउटर लेयर क्या है, इनर लेयर क्या है बेटा? outer layer is 9, inner layer is x square minus 3. Is that clear? समझ में आया? Yes, sir. तो फर्स्ट क्या करना है अपने Yes, को, sir. Yes, sir. आउटर लेयर। अगर 9 को डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना है अपने को, देखो राइट नाउ वी मस्ट अज्यूम x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू, मान के चलो सम u। ठीक है, ओके, या आप मान के Yes, sir. ओके, इसको आप पूरा x मान के चलो, x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू x। okay, then it will become for me how much beta, then y is equals to x to the power of 9 बन जाएगा। तो dy by over dx will be equal to how much beta, 9 into x to the power of 9 minus 1, that is 9। x की जगह क्या है बेटा, आपने assume किया था x square minus 3 to the power of your 8। आ गया समझ में सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Now differentiate what beta, inner layer। Now differentiate the inner layer। Now differentiate inner layer। inner layer क्या था बेटा, x स्क्वायर माइनस 3 को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ योर x स्क्वायर माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज हाउ मच, 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ how much, 0, so differentiation of x square minus 3 is how much for me, 2x। 2x. ठीक है ना, अभी क्या करना है दोनों को, therefore dy Multiply. दोनों को मल्टीप्लाई करना है। so this will be equal to 9 into x square minus 3 to the power of 8 into this one is 2 into x, so 9 into 2, this will become how much for me, 18, so it is 18 into your x into this one is x square minus of your 3 to the power of 8। this is the answer for this one। बात समझ में आई? फिर से एक बार आराम से देख लो, कुछ दिक्कत हो रही है तो प्लीज हेल्प यू आउट। सर आप इनर लेयर एक बार फिर समझाते। क्या बोले? इनर लेयर इनर स्क्वायर माइनस 3। इनर लेयर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करना है। सो डिफरेंशिएशन मतलब कितना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, 3 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, 0। तो आंसर कितना आया, 2x। ओके सर। क्लियर है? Yes, sir. बात समझ में सभी को? Yes, sir. नहीं आया? आया? आया sir. Yes. अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखो जल्दी से। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर ये देखो, y is equals to sin of your 2x, y is equals to sin of your 2x। करना क्या है बेटा, इसमें इनर टर्म कौन सा है, आउटर टर्म कौन सा है, बता पहले। साइन आउटर टर्म है Sin सर, outer 2x इनर टर्म है। ओके, outer layer is sine, inner layer is 2x. therefore, मैं इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी से, क्या आ रहा है देखो, आउटर लेयर का अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बेसिकली क्या आ रहा है, सो यानी इसको क्या बन जाएगा, y is equals to sin 2x को क्या मान के चलो, x मान के चल रहा हूँ। तो डिफरेंशिएशन ऑफ योर sin x will be equal to how much बेटा, dy by over dx will be equal to
D. In the place of y, I am writing sin x divided by dx. Differentiation of sin x will be equal to how much beta? Cos of your x. Cos x. Now, क्या Cos इसको हम लोग ने x मान के चलाया, इसको हम लोग ने x मान के चल रहे हैं, so x मैंने वापस रख दिया 2x. हो गया यहाँ तक, isn't it? Now differentiate inner layer. Now differentiate inner layer. 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? इनर लेयर 2x, 2 बाहर निकालो, x को डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा? यानी y is equals to 2x है बेटा, isn't it? y is equals to 2x. इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? dy by your dx is equals to d. This is your 2 into x divided by dx. तो 2 बाहर आ जाएगा, so this will be equal to dx divided by dx. dx चले जाएगा तो कितना आया? 2 आया. 2. अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को मल्टीप्लाई करना है. सो dy by dx will be equal to, पहला वाला टर्म कितना है? sin of your 2x, और बाहर वाला टर्म कितना है फिर मेरे पास? 2. तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 into cos of your 2x is the answer for this one. बात समझ में आई? Yes sir. क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes sir. चलो और एक क्वेश्चन कर. मान के चलो y is equals to exponential to the power of 2 into x है. Then dy by dx is how much? Then dy by dx is equals to your how much? जल्दी से y is equals to e to the power of x में बाहर का टर्म कौन सा है? इनर का टर्म कौन सा है? 2x outer layer, e inner Inner layer. layer is what and outer layer is what? Inner layer is e, outer layer is 2x. Outer layer is 2x, inner layer is E. e. तो पहले किसको डिफरेंशिएट करना है अपने को? 2x को. So what we can assume here, y is equals to e to the power of x. Okay, where x will be equal to how much for me? 2x. y is equals to your e power f x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? dy by dx will be equal to your again e to the power of x. ठीक है? Now differentiate the inner layer. Now differentiate inner layer. सॉरी, ये तो इनर लेयर मैंने कर लिया. ये क्या किया मैंने? आउटर लेयर को डिफरेंशिएट कर लिया पहले. Differentiation of e to the power of x is nothing but e to the power of x and e to the power of your 2x. Okay, now differentiate your outer layer. Now differentiate your outer layer. Outer layer क्या है मेरे पास? 2x. Difference कितना होगा बेटा? यानी y equal to मान के चलो 2x. dy by dx to d equal to of y 2x 2x divided by dx. तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, so this will be dx by your dx by dx. cancel, that will be equal to 2. 2. आया समझ में? तो Yes आंसर sir. dy by dx will be equal to, दोनों को मल्टीप्लाई करो, e to the power of 2x into E to 2. the power 2x. The answer will be 2 into exponential to the power of 2 into your x. Clear है? Yes sir. Yes sir. चलो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग मैंने बोल दिया था. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ए, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर सी. अब आप लोग ट्राई कर लो बेटा, नहीं आया तो मैं मंडे के क्लास में आप लोग को करवा दूंगा. थोड़ा प्रैक्टिस करो, वीडियो को 1 से 2 बार सुनो, देन यू ट्राई टू डू इट आउट. y is equals to मान के चलो x square plus 3x to the power of your 4. ठीक है? The next one is number D, cos of your 3x. Number E, log of your e x square. F, sin of your 3x plus of your 2. G, y is equals to your, ये पूरे y है बेटा, y is equals to your x square plus of your 3x plus 3 to the power of your minus 3. H, y is equals to e to the power of minus of your 2x. The next one is nothing but I. Y is equals to sin of your 3 into your x plus of your cos of your 2 into x. प्रोडक्ट रूल भी आ जाएगा बेटा, आप लोग जरा देख के कर लेना, पूरे रूल्स आ जाएंगे इसमें. I के बाद क्या हो जाएगा? J. Then y is equals to exponential to the power of minus of 3x plus
log of your e into your x cube plus sine of your 2 into your x. The next one is k. Y is equals to your मान के चलो x square plus 3x plus 2 to the power of your 3 plus this one is your log e into your x square. Next one is L. Y is equals to your x square plus of your 3x to the power of your 15 plus of your sine. This one is 3x plus of your 2 plus exponential to the power of your x square minus of 2x. Next one is nothing but em. Y is equals to your x square plus of your 2x to the power of your 1 by 2. The next one is n. Y is equals to 4 minus of your x to the power of your 3 by 2. सभी का डिफरेंशिएट करना है dy by dx by चेन रूल लगा के करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे? Okay, sir. जितनी हो या आप लोग उतनी करो, डरने की बात कुछ नहीं है। नहीं हो रहा है तो मैं फिर से एक बार करवा दूंगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट 1 से 2 बार जो मैंने मेथड से आप लोग को करवाया उसको 1 से 2 बार आप लोग पढ़ो, और ये बिना इसके आप लोगों को काइनेमेटिक्स करना, अच्छे वाले क्वेश्चंस करने बहुत मुश्किल हो जाएगी। चेन रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग दिमाग में रख के कोशिश करो करने की। अब यहाँ पर देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 क्या मैं चेन रूल लगा सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या मैं चेन रूल लगा सकता हूँ? देखो क्या हो जाएगा, देखो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या करोगे, पहले आउटर लेयर को डिफरेंशिएट करना है, फिर इनर लेयर को डिफरेंशिएट करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लेके चलो मैं, Inner layer. इनर लेयर हो जाएगा, आउटर लेयर क्या हो जाएगा x। 1/2. क्या मैं लेके चलो इसको पूरा मान के चलो सम u मान के चलता हूँ या x मान के चलता हूँ, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट Yes. करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा, तो बता सकता है? डिफरेंशिएशन Y पावर ऑफ 1/2। 2x. हाँ तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। So this will be equal to your, अगर x मान के चल रहा हूँ तो this will be equal to 1/2 into your x square plus 1 to the power of 1/2 minus 1 into x square का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर और स्क्वायर चले गए तो कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस ऑफ योर 1 बच गया। ये बात समझ में आई ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरा मैं x मान के चल रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर ऑफ 1/2 इज नथिंग बट 1/2 x टू द पावर ऑफ 1/2 माइनस 1। x की जगह मैंने फिर वापस अपना नंबर रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 माइनस ऑफ योर 1। तो दिस विल बिकम हाउ मच फॉर मी, दिस विल बिकम फॉर मी एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर ऑफ योर 1/2 minus this will become for me x into x, this will become for me your x square, this 2 and this 2 will get cancel here, so this will become for me your x square divided by ये कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, माइनस है, हाफ माइनस 1 is nothing but minus half, so that will come down, so that I can write as of your x square plus 1 to the power of your 1/2। क्लियर है ना? हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, माइनस निकाल गए तो नीचे आ जाएगा सीधा सीधा वो, देन यू सिंप्लीफाई दिस वन डिवाइडेड बाय this one is your x square plus of your 1। clear है? So the answer is right now for me x square plus of your 1 minus of your x square divide, because x square half हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम कर लो तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय x square plus 1 to the power of 1/2 into your x square plus 1। तो दिस विल बी माइनस है प्लस है तो इसमें चले जाएगा, so this one and this one will get cancelled, so divided by this one is x square plus 1 to the power of ये कितना बन जाएगा 3/2, half plus of your 1 that will become for me 3/2, so this is your answer। क्लियर है? ये मल्टीप्लाई करने आएगा ना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज कॉमन, ये हाफ है यहाँ पर 1 है, हाफ प्लस 1 विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 3/2। क्लियर है? समझ में नहीं आया नहीं? ये देखो बेटा y is equals to x square plus 1 to the power of 1/2 को आप इसको x to the power of 1/2 मान के चलो, x to the power of 1/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा dy by dx अगर मैं करा तो this will be half into x to the power of half minus 1, यानी this will become for me half x to the power of minus of 1/2।
तो व्हाट इज x वी हैव अज्यूम्ड x स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम लोग ने x रख ही लिए थे, तो दिस विल बी इक्वल टू योर हाफ इनटू, मैं वापस वो वैल्यू रख रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर ऑफ -1/2। तो माइनस अगर मैं निकाल दूं तो ये कितना बन जाएगा 1/2 इंटू योर एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर ऑफ 1/2। तो वही लिखा ना मैं यहाँ पर, हाफ इंटू Yes, sir. to the power of half minus 1. Then we need to differentiate x square plus 1 again, इनर लेम को भी डिफरेंशिएट करो, x square plus 1 का डिफरेंशिएशन करना है, तो dy by dx कितना आ जाएगा इसका, दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 1 का हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2x, तो मैंने यहाँ पर 2x डाल दिया, ये 2 कैंसिल हो गया, x और x हो गया x स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो बेटा, m to the power of a into your, मान के चलो m to the power of b है, तो क्या लिखोगे आप, m into your a plus b लिखोगे ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर 1 टू द पावर ऑफ 1 है, तो यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर ऑफ 1/2 प्लस 1, तो ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर ऑफ 3/2। ये पूरा छोटा छोटा कैलकुलेशन है बेटा, मैंने मान के चला कि इतना तो आप लोग को कैलकुलेशन आके होगा, तो दैट रीजन ये स्टेप्स मैंने मेंटली कर लिया यहाँ पर बहुत सारे, फिर भी मैंने आप लोग के लिए फ्री में एक बार कर दिया, वैसे भी रिकॉर्डेड में है, तो आप लोग 1 से 2 बार कर लो, अगर फास्ट हो गया तो। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो लेट मी नो, आई विल ट्राई टू डू इट वंस अगेन इन द टुमारो सेक्शन ऑफ योर क्लास। क्लियर है सभी को? Yes, sir. मैंने अच्छे खासे प्रॉब्लम्स भी दिए प्रैक्टिस के लिए, जितना हो सका उतना आप लोग गिरो, किसी की भी हेल्प मत लो, अगर घर में सिस्टर से कजिन से तो डोंट टेक द हेल्प ऑफ दैट वन, समझ में नहीं आया तो गो बैक, तो आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया उसका रिकॉर्डेड वर्जन है, तो वही टीचर आपका रिकॉर्डेड वर्जन आप लोग जो टीचर पढ़ाए उसी से फिर एक बार आप लोग सुनो, फिर देखो, फिर नहीं आया तो फिर एक बार देखो, फिर नहीं आया तो फिर एक बार देखो, 2-3 बार देखो, क्योंकि चेन रूल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो 1-2 दिन लगेगा समझने के लिए, तो संडे भी वैसे भी बीच में आ गया, तो आराम से आप लोग संडे का थोड़ा बहुत निकाल के टाइम चेन रूल को पढ़ने की कोशिश करो, और अपनी तरफ से करो, और मंडे के क्लास में इसके हम लोग पूरे डिटेल में फिर से एक बार कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. ये आप लोग किया करो यार, मैं आप लोगों को एनोटेशन नहीं बंद कर दिया, मान के चल रहा हूँ कि यू हैव ए डिसिप्लिन, इसको निकालो, कौन कर रहा है ये प्लीज ट्राई टू रिमूव दिस वन जल्दी, whoever it is that please try to erase that one। क्या हुआ, erase कर दो इसको जल्दी।